Good morning students, myself Meenal Murhekar welcomes you all in the online tutorial of Shri Eknath Rao Khadse Talent School, Muktinagar. So in previous video we have learned about atoms and molecules from chapter 3 science. Class 9th we are taking chapter 3, that is atoms and molecules. So in that what we have learned till that previous video, we have learned the basic difference between the atoms and molecule. Yes, we have learned the laws of chemical combination, that are laws of conservation of mass, laws of constant proportion, Dalton atomic theory, and the basic difference between atom and molecule, right? So now today we are going to learn more about atoms and molecules and about their masses also, how they are measured, and about the chemical formulas, how the chemical formulas are made, and how to write the chemical formula. And after that we are going to learn about the mole concept, right? What is a mole? So this is all what we are going to cover in today's session. So we'll start first with atom. What is basically a atom is? As we have discussed that atom is what? Atom is the simplest particle which is invisible, indivisible, indestructible part of matter. It cannot be seen with naked eyes. The smallest particle of any matter is what? It is atom. So first we will see diagrammatically what atom actually is, and how atom is made up of. See, so suppose this is an atom. Right, this is an atom. In between the center, a nucleus is present in which protons and neutrons. Protons are what? Positively charged ions are known as protons. Positively charged particles are known as protons are present in this nucleus, whereas some neutral charged particles are also present here, and these are known as neutrons. See, so in between this nucleus, what are present? Protons and neutrons. And in this outermost layer, what are present? Negatively charged particles are present, and these particles are known as what? Electrons. These are what? Known as electrons. So this is nucleus. It is positively charged. Nucleus is completely positively charged, consists of proton and neutral charged neutrons, right? And after it, these negatively charged particles are revolving, and these are known as what? Electrons. And see, after outer to this nucleus, these electrons are revolving in a particular space, particular path. That path is known as what? That path is known as shells. What are these? Are known as valence shells, right? And suppose this is the atom in which only one valence shell is present, and in the outermost valence shells only three electrons are present. So if we have an atom in which means, as I have sended you that introductory video, in that they have explained you about what are the valence shell and how these shells are arranged. Means suppose you can see here, if it is a nucleus of any atom, so in this manner the shells are arranged. Right. So this is what? This is nucleus. This is the nucleus of any atom. This is the first shell that is known as K, that is named alphabetically. So we can name here this as K shell.
it as L, this is M shell. So here we can name them in this way. So the outermost shell is known as what? Valence shell. The last outermost shell is always known as valence shell. And the electrons which are present in this outermost shell, these electrons are known as valence electrons. Okay, so this is the basic, this is what we are going to learn in chapter 4, but for further understanding it is important to understand these things. That's why I have given a basic concept to you about atom, what atoms actually look like, or what are they, what they are composed of. So basically atoms are what? Atoms are composed of positive and negative charges. Okay, positive charges are inside the nucleus, as nucleus is positively charged, and neutral charges are also present in this nucleus, whereas the negatively charged electrons are revolving around the nucleus, and these are known as electrons. So the electrons which are present, the outer means nucleus is surrounded with shells, and that shells are known as shells are named as K, L, M, N, P, Q, R, S, whatever you want to give the name. And the outermost shell is known as valence shell, whereas the electrons which are present in the outermost shell are known as what? Valence electron. Is this clear to you all? I hope this is clear to you all. Okay, now we are going to learn about what is an atom. You just open your textbook and see on page number 33 one topic is given, that is what is an atom. So from here we are going to learn today. So what is an atom? We have learned this, what an atom is. Atom is what? Atom is a smaller particle which is invisible, indivisible, indestructible part of matter. Right, now we are going to learn how big are atoms. So atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine or compare with. More than millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as this sheet of paper. Means more than millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as thin sheet of पेपर. मीन्स इतना छोटा होता है वो. एक एटम की रेडियस यहाँ पर बताई है. एक एटम की रेडियस क्या होती है? एटम की रेडियस होती है, मीन्स बताया गया है कि एटमिक रेडियस जो है दैट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर. आपने सुना होगा मीटर की मीन्स यूनिट्स जो होती है मीटर, सेंटीमीटर, millimeter, this is what, but atom is measured in what? Nanometer. Nanometer is how much? 1 meter equals to 10 to the power 9 nanometer. Means 10 to the power 9 means what? 1 upon 10 and 9 zeros here. This is what? 1 nanometer. 1 upon 10 to the power, this is known as 1 means 1 meter equals to 10 to the power 9 nanometer. In this form, this is the radius of one atom. So you can imagine how small a atom is. So how many atoms combines to form a single particle of, you may say, a sugar cube is made up of how many atoms? Can you imagine this thing? So this is the radius of an atom. So here examples are given. See the table. Example, atom of hydrogen, the radius of hydrogen atom, molecule of water, molecule of hemoglobin, grain of sand and watermelon. These are the all radius given. Now this is all about what is an atom and how big it is. Right, now from here we are going to learn the symbols of atoms of different elements. We have learned the elements, you know the elements: hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. All these elements present around us are what? Elements. So this all means
all world, you may say, all our surrounding is made up of what? Elements only. In chemical language we can say that everything is made up of elements only. So here we are going to learn almost about in this class we are going to learn approx about 20 elements. So you can turn the page and see page number 34. Here table 3.1 is given, in which symbols of some elements are given to you. So just look at the book I am reading. Aluminium, symbol of aluminium is Al, argon Ar, barium Ba, boron B, bromine Br, calcium Ca, carbon C, chlorine Cl, cobalt Co, copper Cu, fluorine F, gold Au, hydrogen H, iodine I, iron Fe, lead Pb, magnesium Mg, neon Ne, nitrogen N, oxygen O, potassium K, silver silicon Si, silver Ag, sodium Na, sulfur S, uranium U, and zinc Zn. So these are the symbols given in your book. Okay. So how these symbols are given? So from on the top of the page number 34, just pay attention. In the beginning, the names of the elements were derived from the names of the places where they were found from the first time. जहाँ से वो element सबसे first time निकाला गया था, जहाँ वो element सबसे पहले मिला था, उस जगह के नाम से उस element का नाम दिया था, और उसी का जो first abbreviation है, first letter है, उससे उसका symbol दिया गया था. But कुछ जो है उनके कलर्स के नाम से भी दिए गए थे, जैसे गोल्ड का कलर गोल्डन था, दैट्स वाई गोल्ड का नाम जो है गोल्ड दिया गया. सो इस तरह से नाम दिए गए हैं. Symbols of some element are formed from the first letter of the name and letter appearing later in the names. Okay, so जो symbols है वो कैसे दिए गए हैं? जो first letter है उस element के नाम का, उससे दिया गया है, और उसके बाद जो उसका second letter है वो भी उसमें add किया गया है, या second या फिर जो abbreviation बनाने में easy रहा उससे मिलके हमने scientist ने symbols बनाए हैं. Is it clear to you all? Okay, now from here we are going to learn about atomic masses. What are atomic masses? Okay. Now we are going to see about atomic masses. So as Dalton has proposed in his theory that atoms of means what before atoms Dalton's atomic theory, from laws of chemical combination, from the law of constant proportion, it is suggested that in a chemical substance element are always present in a definite proportion by its mass. So from this law it is necessary for all the scientists to know the masses of different elements. So यहाँ से फिर ज़रूरत पड़ने लगी हमें उस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन के बाद जानने की कि हर एक एलिमेंट का मास क्या क्या है. ठीक है, अब हमने एटम का साइज़ देखा हमने कितना स्मॉल है. सो फिर सोचा गया कि एटम को मेजर अगर करेंगे, उसका मास अगर वेट अगर हम मेजर करेंगे तो क्या हम उसको ग्राम्स में, किलोग्राम्स में मेजर कर पाएंगे क्या? एटम इतना स्मॉल है तो क्या वो केजी और ग्राम्स में मेजर हो पाता? नहीं हो पाता. सो इसलिए एटम को मेजर करने के लिए एक अलग यूनिट का इन्वेंशन हुआ, एक अलग यूनिट नेम हुई, और उस यूनिट को क्या बोला? अ न्यू यूनिट वाज सिलेक्टेड फॉर दिस एंड दैट यूनिट इज नोन एज व्हाट? AMU. व्हाट इज इट? AMU. And the full form of AMU is atomic mass unit. What it is? Atomic mass unit, or you may say U to this. U is what? Unified mass.
means mass of one unit. So in atomic in the form of atomic mass unit, the weight of atoms is now going to be measured, and one AMU is what? 1 AMU is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. माइनस 27 मीन्स क्या होगा? 1.67 डिवाइडेड बाय 10 एंड टू द पावर 10 0 0 0 0 is how much time? 27 times 0 in the division of this is what? 10 to the power minus 27. You know this thing, right? You have learned this thing in maths too. So this small weight of 1 AMU is 1 AMU is equal to what? 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. So from this you can conclude that how small a atom is, right? So now a question arises here कि अगर ये इतना स्मॉल है तो इसका स्टैंडर्ड किसको माना जाए? किस स्टैंडर्ड के अपन जब किसी चीज़ को मेजर करते हैं वेइंग बैलेंस पे, तो हम एक साइड पे क्या रखते हैं? वेट रखते हैं उतना, और फिर उसको मेजर करते हैं. अब हमने यूनिट तो डिसाइड कर ली कि किस यूनिट में एटम को मेजर करना है, बट उसका स्टैंडर्ड किसको माने? दिस वॉज द मेजर क्वेश्चन दिस टाइम. सो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए बहुत सारे जो एलिमेंट्स थे उनको हमने स्टैंडर्ड बनाकर ट्राई किया. जैसे सबसे पहला जो एलिमेंट आता है, जो रैंडमली हमारे पास प्रेजेंट होता है, अबंडेंटली प्रेजेंट है यू में से, दैट इज़ हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन को सबसे पहले एक स्टैंडर्ड माना गया. फर्स्ट हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड, बट द वैल्यूज फॉर अदर एलिमेंट इज कमिंग टू बी इन डेसिमल. सो हाइड्रोजन का जो वेट था वो इतना छोटा हो रहा था स्टैंडर्ड के लिए कि एज कंपेरिजन टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, एक साइड अगर वेइंग बैलेंस में आप हाइड्रोजन रखते हैं और दूसरे साइड कोई और दूसरा एलिमेंट रखते हैं, तो क्या हो रहा था? बाकी सारे एलिमेंट्स का जो वेट है वो डेसिमल में आ रहा था. सो अब क्या था? इन एटम्स को मिलके मॉलिक्यूल्स बनाना था, कंपाउंड्स बनाना था. तो जब ये एटम्स दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ कंबाइन होंगे और इनका वेट जब निकाला जाएगा, तो डेसिमल में सब इकट्ठा करना कितना मुश्किल होगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? इतना सब डेसिमल में लाएंगे तो वो वेट कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी. डेसिमल में कैलकुलेट करना इजी नहीं होगा, इसलिए हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड हमने हटा दिया, हाइड्रोजन को वहाँ से हटा दिया. फिर सेकंड आया ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को उसका स्टैंडर्ड माना. फिर क्या हुआ कि ऑक्सीजन में माना, तो ऑक्सीजन के साथ ये पॉसिबल हो पा रहा था, रिलेवेंट था ऑक्सीजन. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो था वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाता है, H2O और बहुत सारी चीज़ें हैं. मीन्स ऑक्सीजन हर किसी के साथ हर एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड बनाता है. तो ये इजी था कि हम ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माने. और ऑक्सीजन का जो वेट था, मीन्स ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को एक स्टैंडर्ड मान के जब हम दूसरे एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे थे, तो जो वेट था तब वो होल नंबर में आ रहा था. दैट वॉज नॉट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल. ये सही था, बट फिर भी हमने ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड यहाँ भी नहीं माना, कुछ और प्रॉब्लम्स आई उस वजह से. फिर लास्ट में कार्बन को हमने सिलेक्ट किया, मीन्स साइंटिस्ट ने कार्बन को सिलेक्ट किया. और कार्बन 12 मीन्स लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आइसोटोप्स. आइसोटोप्स आप जानते हैं, आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका मास डिफरेंट होता है. एलिमेंट तो सेम है, कार्बन एक ही रहेगा, बट कार्बन के भी डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट है. उस कार्बन का एक का मास कुछ और होगा और दूसरा जो फॉर्म है कार्बन का, उसका जो है मास अलग होगा. तो ऐसे भी डिफरेंट मासेस वाले एलिमेंट्स होते हैं. तो जो कार्बन का C12 मतलब ऐसा कार्बन जिसका मास 12 था, उसको स्टैंडर्ड माना गया. और फिर हमें बताया गया कि 1 AMU इज व्हाट? 1 AMU इट इज़ अ मास इक्वल टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम. इट इज़ अ 1/12, इट इज़ अ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम. अब 1/12 क्यों माना गया? अब देखिए इधर, ये अब समझिए इधर. ये सपोज कीजिए ये कोई कार्बन का एक एटम है, ठीक है? ये कार्बन का कोई एटम है. तो
इसको हमने क्या किया, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने इस एटम को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो 12 इक्वल पार्ट्स में ये जो है ये यहाँ पर डिवाइडेड है। तो अब हमको जानना है 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। सपोज अब ये तो आपको समझ आ गया कि C12 एटम मतलब क्या, कार्बन का वो फॉर्म जिसका एटॉमिक मास C का होगा 12, तो उसको हम कह सकते हैं C12 कार्बन, राइट। सो अब हमको बताना है 1/12 पार्ट। तो हमने एक कार्बन एटम का 12 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन किया, और उसका अगर हम एक कोई पार्ट लेते हैं, सपोज दिस, so this will be known as what? This will be known as 1/12 part, right? क्योंकि इतने 12 पार्ट्स में से हमने सिर्फ एक पार्ट को सिलेक्ट किया, so ये अब एक पार्ट क्या कहलाएगा? That will be known as 1/12. So 1 AMU is defined as the mass of 1/12 of the mass of C12 atom. C12 एटम का, ये C12 एटम है को सपोज कार्बन का 12 जिसका मास है वो एटम है, C12 कार्बन का जो 1/12 पार्ट होगा, एक जो पार्ट होगा 12 पार्ट्स में से उस कार्बन 12 एटम का, दैट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 AMU. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो 1 AMU इज डिफाइंड एज व्हाट? It is defined as 1 AMU equals to what? It is the mass equal to 1/12 of the mass of C12 atom. अगर आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बट अगर नहीं समझ में आया है तो वन मोर टाइम आई विल एक्सप्लेन. अज्यूम दिस एटम एज अ वाटरमेलन. ठीक है, आप अज्यूम कीजिए कि ये एक वाटरमेलन है. उस वाटरमेलन को हमने 12 स्लाइसेस में, इक्वल 12 स्लाइसेस में हमने उसको डिवाइड कर दिया, और उसकी जो एक स्लाइस है, उन 12 में से जो एक स्लाइस है उसको हमने क्या बोला? 1/12. तो हम इसको क्या बोलेंगे फिर उस फॉर्म में कि जो 1/12 स्लाइस है, वन स्लाइस फ्रॉम द 12 इक्वल पार्ट्स ऑफ दैट वाटरमेलन इज कंसिडर्ड एज द मास ऑफ 1 atom. Okay, 1/12 the mass equal to, it is the mass equal to 1/12 of the mass of C12 atom. C12 जो एटम है उसका जो 1/12 पार्ट है, that is equal to 1 AMU, 1 atomic mass unit, right? Is this clear now? Yes. So इसी तरह से हम पढ़ेंगे similarly the relative atomic mass of an atom is defined as what? The average mass of the atom as compared to the mass of one carbon atom. क्या है अब relative atomic mass? Relative atomic mass भी एक मेजर टर्म है. Should I write here? Relative atomic mass. What it is? The average mass of the atom as compared to the mass of
1 C12 atom. Okay, relative atomic mass is what? The average mass of the atom as compared to the mass of 1 C12 atom, right? Now ये तो हमने देखा मास और एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। नाउ अब क्या, इससे हमने ये समझ लिया कि अब एटॉमिक मास यूनिट में हमको किसी भी चीज़ को कंपेयर करना है, किसी भी चीज़ का वेट करना है, तो वेइंग बैलेंस हमने किसको समझा? C12 एटम के 1/12 पार्ट को, वो जो एक स्लाइस निकली वाटरमेलन की। अब क्या करेंगे, वेइंग बैलेंस में हम एक साइड पे वो जो एक स्लाइस निकली वाटरमेलन की उसको रखेंगे, मीन्स C12 एटम का जो 1/12 पार्ट है उसको स्टैंडर्ड मान के हम उसको वेइंग बैलेंस में रखेंगे, और दूसरे साइड पे अदर एलिमेंट का एटम को हम मेजर करेंगे। सो इन दिस वे अ स्टैंडर्ड इज सिलेक्टेड। ओके, सो अब हम देखते हैं पेज नंबर 35 पे आइए, और टॉपिक है वहाँ पर यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है 3.2 वेयर एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन। कुछ एलिमेंट्स के मासेस यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हमने देखा, एटॉमिक मास यूनिट को हम या तो AMU में मेजर करते हैं या पहले हमने देखा U में मेजर करते हैं, दैट इज यूनिफाइड मास। सो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना दिया हुआ है 1U, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन 14U, ऑक्सीजन 16U, सोडियम 23U, मैग्नीशियम 24U, सल्फर 32U, क्लोरीन 35.5U, कैल्शियम 40U। ओके, तो ये कुछ एलिमेंट्स के जो थे यहाँ पर हमको एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद रखना है क्योंकि अभी यू आर नॉट नोइंग हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक मास, सो फॉर दिस चैप्टर you have to learn these atomic masses, right? You have to learn the symbols from page number 34, symbols of some element, and you have to learn the atomic masses of these few elements too. So this will be beneficial for you to find the valencies and all, and in next chapter we are going to learn this in detail, so till that time you have to learn this. Okay, so now the topic is how do atoms exist? atoms कैसे रहते हैं, है ना। जैसे हम कैसे यहाँ पे कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, फ्रीली रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, किसी के साथ रहने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे हमें अब देखना है कि एटम्स कैसे रहते हैं, ठीक है। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? Atoms of most of the element do not exist independently, either they form molecule or ion. क्या होता है कि एटम्स जो है जनरली किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, वो या तो कंबाइन होते हैं अदर एलिमेंट्स के एटम के साथ ताकि वो मॉलिक्यूल बना सके। दो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, या वो सिंपली आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आयन्स क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ी देर में हम ये पढ़ेंगे कि आयन्स क्या होते हैं, ठीक है। So these molecules are ions aggregate in large number to form the matter that we can see, feel और touch. फिर ये जो एटम्स हैं ये कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, या तो ये खुद ही के एटम के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना लेते हैं समटाइम्स। जैसे आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन सिंगल O फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्या कभी भी? हमने कभी पढ़ा है O2 O जब हम लिखते हैं तब क्या सिंपली हम O लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं, हम O को हमेशा ऑक्सीजन के सिंबल को हमेशा क्या लिखते हैं? O2 लिखते हैं। तो O2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन सिंगली जो है वो स्टेबल नहीं है, वो एक सिंगल फॉर्म में नहीं रह सकता, इसलिए उसको स्टेबलाइज फॉर्म में प्रेजेंट होने के लिए दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होना पड़ता है, एक बॉन्ड बनाना पड़ता है, उसके साथ अडेयर होना पड़ता है, अट्रैक्ट होना पड़ता है ताकि वो सिंगली फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाए। सो ऑक्सीजन हमने हमेशा देखा है कि ऑक्सीजन इस फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ओके, सो ठीक है। सो अभी जो भी मॉलिक्यूल्स और आयंस हमें प्रेजेंट है
मतलब ये जो एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स और आयंस बनाते हैं, सिंगली प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जब ये आयंस और मॉलिक्यूल्स बनते हैं तब इन मॉलिक्यूल्स और आयंस से ही फिर ये जो सब मैटर है ये सारी चीज़ें बनी हुई है जो हम यूज़ करते हैं। तो इन जब ये मॉलिक्यूल्स और आयंस भी वापस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तब ये क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, जो आज की डेट में हम जिनको देख सकते हैं, जिनको फील कर सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, जिनको सेंस कर सकते हैं। ओके, राइट। तो अब हमने देखा कि एटम्स जो है कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, देन फिर हम आएंगे आयंस कैसे बनते हैं। ओके, so first we'll see about molecules. Now here I am requesting one thing, that please do not write all these things whatever I am writing on the blackboard, because just pay attention here on the blackboard only. I'll provide you the written notes of this chapter so that you can easily understand what it is. So क्योंकि अगर आपने अभी लिखने में टाइम वेस्ट कर दिया तो आपका कॉन्सेप्ट छूट जाएगा और फिर ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो बाद में आपकी समझ नहीं आएंगी। सो बेटर है अभी आप इसको समझिए, मैं आपको रिटन फॉर्म में नोट्स इसके दे दूँगी, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। सो मॉलिक्यूल्स आर व्हाट? A molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together through attractive forces. Right. अब सपोज हमने उस दिन देखा था हाइड्रोजन का हमने मॉलिक्यूल बनाया था। तो जब दो एटम्स किसी एलिमेंट्स के दो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो वो क्यों कंबाइन होते हैं? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस हैं। जैसे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स में अपने वो जब न्यूटन का लॉ उन्होंने बताया था तो उन्होंने क्या बोला था कि जो एप्पल है वो पेड़ से नीचे क्यों गिरा? क्योंकि जो अर्थ है वो उसको एक फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, अट्रैक्ट कर रही है उस फ्रूट को अपनी तरफ, इसलिए वो एप्पल डायरेक्टली जाके नीचे गिरा। सो इसी वे में क्या होता है, जब एटम सिंगली प्रेजेंट होते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। उनको स्टेबल होने के लिए किसी के साथ कंबाइन होना ज़रूरी है। तो क्या होता है कि वो एक दूसरे की तरफ ऐसे अट्रैक्ट करते रहते हैं कि कौन हमें स्टेबल करेगा, कौन हमें स्टेबल करेगा। तो इस वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन का एक फोर्स बनता है उनके बीच में, और जब ये जाके एक दूसरे के साथ जब ये जाके मिलते हैं तो इस फोर्स से ही क्या बनता है, फिर उनके बीच में बॉन्ड बनता है एक, ठीक है। जिस बॉन्ड के बेसिस से वो एक दूसरे के साथ अडेरेंस के फॉर्म में, एक ग्रुप के फॉर्म में वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं बता रही हूँ। बॉन्ड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, वो आप नेक्स्ट क्लासेस में भी पढ़ेंगे। बट आप बस बॉन्ड का मतलब ये जान लीजिए कि कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जिसके कारण उनमें अडेरेंस होता है, वो ग्रुपिंग करते हैं एलिमेंट्स, एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के, उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। और इस बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से हमें एटम्स से क्या मिलता है, हमें एटम्स से मॉलिक्यूल मिलता है। ओके, now a molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and show all the properties of that substance, ठीक है। यहाँ पर अब ये क्या बोल रहे हैं कि एटम जो है, एटम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल और कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। एक मॉलिक्यूल अगर एक जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अभी हमने देखा एटम जो है वो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो रह सकता है क्या सिंगली? नहीं, उसको किसी और की ज़रूरत है कि वो उसको स्टेबलाइज करे। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए अब उसने क्या बना लिया, दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ उसने बॉन्ड बना के
बॉन्ड शेयर करके क्या बना लिया, एक मॉलिक्यूल बना लिया। तो ये जो मॉलिक्यूल अब बना, ये मॉलिक्यूल क्या है, ये एक ऐसी स्मॉलेस्ट एंटिटी है, स्मॉलेस्ट यू में से स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो अब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली ये अकेले रह सकता है। ठीक है, उसको आप ऐसे फ्री भी छोड़ दोगे मॉलिक्यूल को तो भी वो एग्जिस्ट करेगा। सो atoms of same element or of different elements join together to form molecules। अभी हमने देखा या तो सेम एलिमेंट्स के एटम जो कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे, जैसे हमने O2 का एग्जांपल देखा, और या तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि वो सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के साथ कंबाइन होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे। तो दो मेजर टर्म्स है यहाँ पर, आप ध्यान रखिए, वो क्या है, होमो एटॉमिक और सेकंड इज हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक। सो होमो एटॉमिक इज व्हाट, होमो, यहाँ पर आप ब्रेक कर दीजिए इनको, होमो एंड एटॉमिक, हेटेरो एंड एटॉमिक। Homo means what? Homo means same, and hetero means what? Hetero means different. Atomic means atoms. Okay, so homoatomic means what? When atoms of same element combines to form a molecule are known as what? Homoatomic molecules, while the atoms from different element combines to form a molecule are known as what? Heteroatomic molecules. So this is a major difference. आप बस नाम को याद रख लीजिए, homo means same, hetero means different. So when the atoms of same element combine to form a molecule are known as homoatomic, while when the atoms of different elements combine to form a molecule are known as what? Heteroatomic molecules. Right? Now the number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity. अब here another term is there, that is atomicity. अब ये एटमिसिटी क्या है, एटमिसिटी है कि कितने द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटमिसिटी। एक एलिमेंट में कितने जो है मीन्स एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हो रहे हैं उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी एटमिसिटी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें H2O का अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर हाइड्रोजन और कौन कौन से एलिमेंट्स है, सबसे पहले तो हम देखें कौन कौन से एलिमेंट्स है। वाटर बन रहा है, H2O बन रहा है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस एक H2O के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें क्या लग रहा है, इस ऑक्सीजन का तो एक ही एटम लग रहा है, बट ये जो हाइड्रोजन है यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है, मीन्स इस एक मॉलिक्यूल, वाटर के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन का एक एटम लग रहा है, वही हमें हाइड्रोजन के दो एटम्स लग रहे हैं। तो ये क्या हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन तो 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो ये जो नंबर है जितने में वो प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, उसकी एटमिसिटी। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की एटमिसिटी कितनी हो गई, 2, और ऑक्सीजन की कितनी हो गई, 1। ओके, तो इसे क्या कहते हैं हम, उसकी एटमिसिटी। राइट। सी, अब आइए पेज नंबर 36 पर, वहाँ पर एक टेबल दी है, वहाँ पर हमें बताया है कि एटमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स। अब एटमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स के बेसिस पर भी हमने जो है मॉलिक्यूल्स को डिफ्रेंशिएट किया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ एलिमेंट दिए हैं सारे, यहाँ पर नॉन मेटल्स दिए हैं, उनके नाम दिए हैं और उनकी एटमिसिटी बताई है। तो एटमिसिटी में के बेसिस पे भी मॉलिक्यूल्स को हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला है आर्गन। आर्गन को हमने क्या बोला है, मोनो एटॉमिक। मोनो मीन्स सिंगल, तो मीन्स क्या होता है, आर्गन सिंगली फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
ठीक है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। आर्गन क्या है, एक नोबल गैस है और नोबल गैस को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अकेले अपने फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है। तो इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, मोनो एटमिक। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हीलियम का। हीलियम भी क्या है, हीलियम भी सिंगली प्रेजेंट रह सकता है, वो भी एक नोबल गैस है, उसकी भी कोई वैलेंसी नहीं है, तो इसलिए वो भी अपने सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। जैसा कि हमने ऑक्सीजन की बात की, ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, O2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मीन्स वो सिंगली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको किसी और ऑक्सीजन के साथ उसके सेम मॉलिक्यूल, उसके सेम एटम के साथ कंबाइन होने की ज़रूरत है, तभी वो जाके स्टेबल होगा, सिंगली मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसकी एटमिसिटी को हम क्या कहते हैं, डाई एटमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई एटमिक। डाई मीन्स क्या, डाई मीन्स 2, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डाई एटमिक कहते हैं। फिर होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो आता है, हाइड्रोजन भी कभी हम सिंगली ऐसे H नहीं लिखते। हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हमेशा H2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम हाइड्रोजन को भी हमेशा क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डाई एटमिक। फिर आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ डाई एटमिक मॉलिक्यूल। Other than this, chlorine is also present in the form of Cl2, so here it is also known as diatomic molecule. फिर नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या कैसे प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस को, फॉस्फोरस की एटमिसिटी हमें दी है, टेट्रा एटमिक दी है। टेट्रा मीन्स मेनी, यू में से 3, ओके, फॉस्फोरस को हम 3 कह सकते हैं, तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, टेट्रा एटमिक। और सल्फर जो है वो 4 के, उसकी वैलेंसी जो होती है 4 होती है, मीन्स क्वाड के फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है, उसकी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में भी वो प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, पॉली एटमिक। ओके, सो ये हमने देखा एटमिसिटी के बारे में। एटमिसिटी के बेसिस पर एटम्स का जो डिवीजन है वो हमने देखा, मोनो एटमिक, डाई एटमिक, टेट्रा एटमिक और पॉली एटमिक। ओके, नाउ अब क्या होता है, एक वन मोर थिंग इज हियर, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन अ डिफाइनाइट प्रपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। अब यहाँ पर दिया है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कैसे बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। सो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, मीन्स कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, अब हम ये देखने वाले हैं। तो कैसे बनते हैं कंपाउंड्स के एलिमेंट्स, atoms of different elements join together in definite proportion to form molecules of compound। जैसे कि हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में पढ़ा कि जो है एटम्स जो है वो एक पर्टिकुलर मास जो उनका है वो फिक्स्ड है, जब वो एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं तो उनके पर्टिकुलर जो मास है उसमें वो प्रेजेंट होते हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, एक उनका जो रेशो है वो फिक्स्ड है। अगर वो एलिमेंट को मतलब वो जो मॉलिक्यूल जब वो बनाएंगे तो उस एलिमेंट मीन्स वो जो मॉलिक्यूल का रेशो होगा, जिस अमाउंट में वो 2 एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के प्रेजेंट है, वो जो रेशो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। वो भले ही फिर आप कहीं भी सोर्स, किसी भी सोर्स से आप उस मॉलिक्यूल को उठाकर लेकर आओ, आपको उस ही रेशो में वो मिलेगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने वाटर का एग्जांपल देखा था H2O, तो H2O का हमने जो रेशो देखा था वो क्या देखा था, 1:8 के फॉर्म में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, राइट। देखा था वाटर का 1:8 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये जो रेशो है ये कभी भी चेंज नहीं होता है। तो वही कुछ मॉलिक्यूल्स के रेशो हमें यहाँ पर दिए हैं। देखिए पेज नंबर 36 पर टेबल नंबर 3.4 वाटर का जो दिया हुआ है उसका रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8, अमोनिया का दिया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 14:3 और कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है, कार्बन और ऑक्सीजन का दिया है 3:8। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम्स जो कार्बन के प्रेजेंट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 एटम्स कार्बन के होंगे, वहीं ऑक्सीजन के 8 होंगे। ओके,
तो ये जो है ये हमेशा कोई भी एलिमेंट हो उसके मीन्स मॉलिक्यूल हो उसके लिए ये जो प्रपोर्शन है, रेशो है, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। सो जब ये फिक्स्ड अमाउंट में कंबाइन होते हैं कोई भी मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो जो एटम्स है वो क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर आयंस। ठीक है, आयंस क्या होते हैं। तो आयंस देखिए, अब हमने तो ये देख लिया कि ये ऐसे स्टेबल हो गए। ठीक है, स्टेबल हो गए एटम, स्टेबल हो गए तो इन्होंने क्या बना लिया, मॉलिक्यूल बना लिया। पर क्या होता है कि स्टेबल होने के लिए भी इनको सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे हमने पढ़ा सबसे पहले एटम का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमने पढ़े। प्रोटॉन क्या, हमने प्रोटॉन को क्या बोला, पॉजिटिवली चार्ज आयन बोला, नहीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोला। वही हमने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोला एटम का। तो क्या होता है कि हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी देखे वैलेंस शेल देखा, जो आउटर मोस्ट शेल है एटम का उसे हमने क्या बोला, वैलेंस शेल बोला। और उस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे हमने क्या बोला, उसे हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ये जितने इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनका कुछ चार्ज होता है अपने ऊपर। एक जब वो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जब वो किसी के साथ मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, जब वो मीन्स नहीं स्टेबल फॉर्म में नहीं हो पाते हैं, तो स्टेबल होने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उनके जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है, उनको या तो डोनेट कर देना पड़ता है मॉलिक्यूल बनाने के लिए, किसी को दे दो ताकि हम स्टेबल हो जाएं, अपने इलेक्ट्रॉन्स वो किसी को दे देते हैं ताकि वो खुद स्टेबल हो जाएं, या तो वो किसी से गेन कर लेते हैं ताकि वो खुद स्टेबल हो जाएं। तो मॉलिक्यूल जब वो बनाते हैं तब भी वो यही करते हैं, लेना देना ही करते हैं आपस में, तभी तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तब जाके उनमें बॉन्ड बनता है और एक मॉलिक्यूल बनता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं कि जब वो एक दूसरे के साथ अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल शेयरिंग जब वो अपना बनाते हैं, तब उनके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है। मतलब जैसे हमने कुछ दे दिया, अब जैसे हमने देखा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उस एटम में प्रेजेंट है, तो एक और चीज़ आप जान लीजिए कि जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होंगे एटम में, उतने ही प्रोटॉन मतलब उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होगा। जितना आउटर शेल्स में नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ही अंदर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब क्या होता है, अब न्यूक्लियस तो अंदर होता है, देखा हमने जैसे, तो उनको मतलब स्टेबलाइज होने के लिए अब इतने अंदर से तो वो कुछ निकाल के अपना नहीं दे सकता। अब हमको अगर स्टेबल होना है तो हम किसी को अपना हार्ट निकाल के दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या, बोलो? नहीं दे सकते। हमारे पास जो आउटरली प्रेजेंट होगा वही सबसे हम पहले निकालेंगे। अगर क्लोथ्स की ज़रूरत है तो हम ये क्लोथ निकाल के किसी को दे सकते हैं ना। अगर किसी सामने वाले को ठंड लग रही है, वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपना क्लॉथ निकाल के उसको दे देंगे ना। तो इस वे में क्या होता है, ये जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स हम मतलब जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल के किसी और को दे देते हैं, या मतलब उसको बाहर निकाल लेते हैं ताकि वो खुद स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट हो पाए। ठीक है, तो जब वो निकल जाते हैं तब उनके ऊपर, या जब वो निकलते हैं या किसी से लेते हैं, तो उनके ऊपर एक चार्ज आता है। उस चार्ज के फॉर्म में, जब उस चार्जिक फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आयन। क्या कहते हैं? आयन। तो आयन क्या होता है? An ion is a charged particle and can be negatively and positively charged. वो आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एन आयन कहते हैं। और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कैटायन कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा और नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा। तो आप ये जान लीजिए, जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को देता है, तो देता जब वो दे देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और वो जब किसी से लेता है इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तब नेगेटिवली चार्ज होता है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, देने पे प्लस, लेने पे माइनस। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस चार्ज, किसी से ले रहा है तो नेगेटिवली चार्ज। जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज अगर आया उसके ऊपर
दे दिया उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आया, तो उसे हमने क्या बोला, कैटायन बोला। और किसी से उसने बोरो किया अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो उस पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया, और उसे हमने क्या बोला, एनायन बोला। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका आयन का। ओके, नाउ इन मॉलिक्यूल्स और आयंस के बेसिस पे ही हम क्या बनाते हैं, अब केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए पेज नंबर 37 पे जो टेबल दिया हुआ है 3.6, उसमें देखिए नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस। यहाँ पर कुछ आयंस जो है, जो अब वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे क्योंकि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, तो वो मॉलिक्यूल अगर बना दिए तो फिर मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनाना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी वो खुद कंबाइन हो गए, तभी तो जाके मतलब दो एलिमेंट, दो एटम्स जो है वो कंबाइन हो गए, तभी उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया है। पर अभी हमको यहाँ पर बताना है कि कैसे उसने मॉलिक्यूल बनाया, कैसे हम उस मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, हम खुद कैसे उस केमिकल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो उस चीज़ के लिए क्या होगा, उस चीज़ के लिए अब हमको आयंस के ऊपर जो चार्ज है, किस आयन के ऊपर, किस एटम के ऊपर कितना चार्ज है, वो जानना ज़रूरी है। तो वो हम इस टेबल में जानेंगे। तो आप पढ़िए ये टेबल, इसमें क्या दिया है, नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+, मैग्नीशियम Mg2+। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ेंगे और इनको आप लर्न करेंगे। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू मी, हम अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू